Hello everyone. Once again, welcome to the engineering physics class. Today I'm going to discuss with the last chapter fiber optics. As you already know that fiber optics is a waveguide, dielectric waveguide system that is operated at the optical frequency. And we already know that optical fiber is generally consist of core, cladding, and jacket. Core is the innermost part of the fiber, which has higher refractive index N1, and this particular core, this is the core. This core is particularly made by ultra pure silica. This is the main point. This core is based on the ultra pure silica oxide. Now, the second part of this particular fiber, this core, the inner section core is surrounded by the another layer that is called cladding. The cladding has the lower refractive index in compared to the core. That means we know N1 should be greater than N2. This is the first primary condition for propagation of light within the fiber. So this is cladding. Okay. Uh, when we discuss about the core diameter, core is innermost section core diameter is near about 5 micrometer to 100 micrometer range. Okay. And when we discuss about the cladding diameter, that is near about 125 micrometer range. And the outermost jacket, the outermost part is called jacket, buffer jacket. That is called buffer jacket is that is made by the polymer, and their diameter is near about 250 micrometer. Okay, this whole optical fiber is totally based on the total internal reflection. Okay, so now today we are going to discuss a very important topic, acceptance angle and numerical aperture of the fiber. So what is the acceptance angle? Acceptance angle, that is the maximum angle that the ray can relative to the axis of the fiber and propagate within the fiber. That is called acceptance angle, and this is called acceptance cone. The acceptance cone within the this acceptance cone, this is the full angle 2 theta, and light can propagate within this cone and propagate transmit within the fiber with TIR. So our objective is to find out the maximum angle. मैक्सिमम एंगल वो कितना होगा जब लाइट रे एंटर करेगा इस एंड ऑफ द फाइबर में एंड प्रोपागेट करेगा टीआईआर के थ्रू आउटपुट के लिए, तो हम उसको आई मैक्सिमा कह सकते हैं कि व्हाट इज द आई मैक्सिमा एक्सेप्टेंस एंगल है ना, आई कितना होना चाहिए। इन जनरल यदि हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करेंगे तो नियर अबाउट 14 डिग्री का होना चाहिए एक्सेप्टेंस एंगल। सो एक्सेप्टेंस एंगल इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट fiber that depend upon the material of the fiber and diameter of the fiber। यदि किसी फाइबर का डायमीटर चेंज कर देते हैं या हम मटेरियल चेंज कर देते हैं तो यहां पर से एक्सेप्टेंस एंगल भी उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जनरली एक हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि वो मैक्सिमम एंगल कितना होगा। सो हियर इज द डायग्राम फॉर द एक्सेप्टेंस एंगल, राइट। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमने ये डायग्राम बनाया है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। सपोज द लाइट रे ओ ए, दिस इज लाइट ओ और ये ए, द लाइट रे एंटर्ड इनटू द एंड ऑफ द फाइबर। किसी पे स्ट्राइक करता है, सो कोई लाइट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इस पे वो स्ट्राइक कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में ओ ए। अब ये ओ ए एंगल आई से स्ट्राइक कर रहा है वेयर द आउटसाइड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम इज एन नॉट इज द आउटर साइड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आउटर साइड हमारा एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान के चल रहे हैं एन नॉट है, दैट इज कॉल्ड लॉन्चिंग जोन। दैट इज कॉल्ड लॉन्चिंग, जहां से लॉन्च किया जा रहा है लाइट को, दैट इज कॉल्ड लॉन्चिंग जोन। एंड दिस लाइट रे इज come
to from one medium to another medium, they refract to AV डायरेक्शन. अब ये जब लाइट यहां से एंटर कर रही है तो ये एक्सिस ऑफ द फाइबर दिखाई दे रहा है. इससे जब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिखाई दे रहा है, इनर पार्ट ऑफ द कोर का है वो N1, राइट. तो इस पे जब वो जाएगा तो वो रिफ्रैक्ट कर रहा है एंगल R से और थीटा एंगल आप बना रहा है वो कोर के साथ. तो कोर के साथ जब वो बना रहा है तो ये TIR को फॉलो कब करेगा? एंड एवरीबडी नो दैट व्हेन थीटा इज इक्वल टू या ग्रेटर देन थीटा सी हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तब वो TIR को फॉलो करेगा. अब ये भी क्वेश्चन ये आना चाहिए कि यदि मान लीजिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ना हो और यदि कम हो तब क्या होगा? तब आपको दिखाई दे रहा है ये कोर है और ये क्लेडिंग है. तो कोर और क्लेडिंग के इंटरफेस जहां से जुड़ता है कोर क्लेडिंग इंटरफेस, उससे लाइट जो है स्कैटर्ड होकर बाहर की तरफ चली जाती है यदि वो क्रिटिकल एंगल से कम होगा. तो यहां हमारी कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको लेके चलना है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेने के लिए हमारे पास 2-3 प्राइमरी कंडीशन होनी चाहिए. तो व्हाट आर द मेन प्राइमरी कंडीशन टू प्रोपगेट द लाइट विद इन द फाइबर? क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास? तो पहली कंडीशन तो आपको पता है कि सबसे पहले कंडीशन यही है कि N1 शुड बी ग्रेटर देन N2. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर ऑलवेज ग्रेटर देन टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लेडिंग. से ज्यादा होना चाहिए. यदि ज्यादा नहीं होगा तो मैंने अभी बताया कि लाइट जो आप स्ट्राइक कर रहे हैं, जो लाइट फाइबर में एंटर कर रही है, वो अंदर TIR ना करके वो बाहर की तरफ चली जाएगी, कोर क्लेडिंग इंटरफेस से वो बाहर स्कैटर्ड हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग. उसको बोलते हैं स्कैटरिंग लॉस. तो यहां हम स्कैटरिंग लॉस से बचने के लिए हमको उसको उस मैक्सिमम एंगल को ही हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, राइट. तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, इस पे अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ इंप्लीमेंट किया. तो स्नेल लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर N1 अपॉन N0. या इसको बोल सकते हैं लॉन्चिंग जोन से लाइट ये जा रही है तो N0 हो गया और इसका एंगल हो गया आपका साइन आई. अब ये एंगल जब अंदर की तरफ जा रही है तो ये एंगल कितने चेंज हो गई? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया साइन आर और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका N1. तो ये हो गया N0 साइन आई N1 साइन आर. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, राइट. अब आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल R है, रिफ्रैक्टिव एंगल, और ये फाइबर के साथ, इनर फाइबर कोर के साथ थीटा एंगल बना रहा है. तो मेरे को क्या करना है? सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है. ये कितना होगा? R. तो R निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? R हम निकालेंगे R इज इक्वल टू, तो R निकालने के लिए हो जाएगा 90 माइनस थीटा. यदि वैसे भी हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी से चलें, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है? तीनों का यदि हम सम करें, यानी कि हम यहां सम करके दिखाते हैं R प्लस थीटा और प्लस ये 90 एंगल विच इज इक्वल टू 180, राइट. ये हो गया हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से. अब इसको हम यहां से R निकालेंगे तो यही 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर 1. सो वी गॉट N0 sin I is equal to N1 sin 90 minus theta, right. तो sin 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका? cos थीटा होता है. तो हम ये यहां से लिख सकते हैं N1 sin I is equal to N1 cos थीटा. ये आपका इक्वेशन जनरेट हो गया एक, दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन. अब ये हमारे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ हमारी वैल्यू आ चुकी है, राइट. अब हमको वैल्यू TIR कराना है. तो व्हाट आर द मेन कंडीशन टू प्रोपागेट लाइट विद इन द फाइबर? क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एंगल जो दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन हो सकती है. यहां आप लिख दीजिए कि कंडीशन फॉर प्रोपागेशन ऑफ लाइट विद इन फाइबर.
तो फाइबर में लाइट को प्रोपेगेट कराने के लिए हमारी कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके 2 मार्क्स के लिए पूछा सकता है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट विद इन द फाइबर। तो क्या क्या कंडीशन होती है इन जनरल। तो इन जनरल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि थीटा जो होना चाहिए वैल्यू वो थीटा सी हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। एंगल जो आपका एंगल लिया है वो आई मैक्सिमा बन जाएगा, मैक्सिमम एंगल, राइट। और जो साइन थीटा सी लेंगे इसका आप, वो साइन थीटा सी की जो वैल्यू है वो n2 अपॉन n1 होनी चाहिए, और एज यूजुअल n1 शुड बी ग्रेटर देन n2। तो दीज आर द प्राइमरी कंडीशन, ये हमारी प्राइमरी कंडीशन होनी चाहिए। आपको मेंशन करना है कि कंडीशन फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट विद इन द फाइबर इज थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा सी, I is equivalent to I maxima, and sin theta c is equal to n2 upon n1, and n1 is greater than n2। ये हमारी प्राइमरी कंडीशन है। अब दिस पर्टिकुलर कंडीशन विल बी अप्लाई इन इक्वेशन नंबर 2 में हम करेंगे। तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। सो इक्वेशन विल बी, आप यहां लिख दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। अब यहां हो गया n नॉट साइन, ये I जो है I मैक्सिमा बन चुका है अब हमारा एज पर द कंडीशन, राइट। ये हो गया आपका n1 cos थीटा c हो गया। अब थीटा को क्या लिखेंगे हम, थीटा c के इक्विवेलेंट। तो एक नई हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हो रही है, साइन I मैक्सिमा इज इक्वल टू n1 अपॉन n नॉट, राइट, cos थीटा c। ठीक है, अब हमको इस वैल्यू को चेंज करना है। आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास ये वैल्यू साइन के फॉर्म में आना चाहिए था। ये हमारी बार वैल्यू कितनी है, आर के फॉर्म में। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल आपको दिखाई दे रहा है थीटा सी है, साइन के फॉर्म में होना चाहिए। तो कॉस थीटा को हम कॉस थीटा, लेकिन हमारे पास वैल्यू आपको दिखाई दे रही क्रिटिकल एंगल साइन के फॉर्म में है। तो कॉस थीटा को हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या हो सकता है, अंडर रूट 1 माइनस sin square theta c. We already know that the value of sin theta c is n2 upon n1. So equation will be cos theta c is equal to under root 1 minus n2 upon n1 the whole power. तो आपको दिखाई दे रहा है sin theta c is the primary condition for propagating light of within the fiber। ये हमारी प्राइमरी कंडीशन है। तो हम इस वैल्यू के हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इक्वेशन विल बी cos थीटा c इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉल्व किए इसको तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1। अब इस cos थीटा c की वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर पे, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 ले लीजिए, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of cos theta c in equation थर्ड। अब इस थर्ड में आप इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारी नई इक्वेशन एक जनरेट होगी, वो हो जाएगी आपकी साइन I मैक्सिमा इज इक्वल टू n1 अपॉन n नॉट अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1. So cancel out from n1 to n1. So equation will be sin I maxima is equal to n1 square minus n2 square upon n0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द आउटर साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आउटर साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है, n0, जिसको हम लॉन्चिंग जोन कहा हमने, दैट इज द एयर पार्ट। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां। सो साइन I मैक्सिमा इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। सो I मैक्सिमा विल बी साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। So this is our acceptance angle. This is the maximum. As we already discussed, the definition हम define करना होगा।
तो डिफाइन कैसे करेंगे हम कि एक्सेप्टेंस एंगल, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा? द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल दैट द लाइट रे कैन बी relative to the axis of the fiber and propagate within the fiber is called the acceptance angle. यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल कितना होना चाहिए मैक्सिमम कि लाइट जो है इस TIR को फॉलो करे। तो TIR को फॉलो करने के लिए हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करेंगे तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारी 14 डिग्री की है। लेकिन यदि हम फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं तो हमारी ये मैक्सिमम एंगल होना चाहिए I maxima is equal to sin इनवर्स n1 square minus n2 square, where n1 क्या है? n1 is the refractive index of the core. तो आप यहां मेंशन कर देंगे where n1 is the refractive index of core, right? और n2 जो है आपका refractive index of cladding. ये दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप करते ही साथ हो सकता है आपको ये 5 नंबर के में भी आए और कभी कभी ये 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर, राइट? अब हम इसमें एक्सेप्टेंस एंगल हमने निकाल लिया, तो एक्सेप्टेंस एंगल निकालने के बाद हम इसको कोरिलेट करते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर से। तो न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है? लाइट गैदरिंग कैपेसिटी। तो किसी भी फाइबर की लाइट को गैदर्ड करने की जो कैपेसिटी होती है दैट डिपेंड अपॉन द एक्सेप्टेंस एंगल। नेचुरल सी बात है, यदि ज्यादा एक्सेप्टेंस एंगल होगा तो क्या कहते हैं आपका ज्यादा यानी कि लाइट रे एंटर करेगी, कम एक्सेप्टेंस एंगल होगा तो कम। तो जो एक्सेप्टेंस एंगल होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो वैल्यू होती है दैट इज नियर अबाउट 0.4 to 0.5 और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 0.1 से लेके 0.3। अब क्वेश्चन ये हो सबसे पूछा जाता है कि न्यूमेरिकल एपर्चर ज्यादा कम होना चाहिए ज्यादा, तो न्यूमेरिकल एपर्चर ज्यादा अच्छा है। ज्यादा होने का मतलब है हमारे पास लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। लाइट गैदरिंग कैपेसिटी होगी तो आप उसी अनुसार उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो अब दोनों चीज निकल के आ रही है, हम यहाँ से कोरिलेट कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है। अभी हमने आपको बताया दैट इज कॉल्ड द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी एंड लाइट गैदरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेप्टेंस एंगल पे। कहने का मतलब ये हो रहा है कि न्यूमेरिकल एपर्चर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेप्टेंस एंगल, राइट? तो आप सीधा सीधा एक फार्मूला यहीं से जनरेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो एक फार्मूला तो यहीं से आप जनरेट कर लिया आपने कि न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है। तो न्यूमेरिकल एपर्चर को एक्चुअल में हम दूसरे तरीके से कोरिलेट करेंगे, दैट वर्ड इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिफरेंस। तो फ्रैक्शनल डिफरेंस क्या है? फ्रैक्शनल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन कोर क्लेडिंग टू कोर, दोनों के बीच का रेशो, द रेशो बिटवीन कोर क्लेडिंग, द डिफरेंस बिटवीन कोर क्लेडिंग अपॉन कोर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज कॉल्ड डेल्टा। और डेल्टा की जो वैल्यू होती है उस दैट इज कॉल्ड n1 माइनस n2 अपॉन n1, यानी कि कोर क्लोडिंग के बीच का डिफरेंस अपॉन कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिफरेंस। तो हमारे इस तरीके से न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड आउट करने के लिए हमको एक दूसरा फार्मूला भी जनरेट करने को ऑप्शन आ रहा है। एक फार्मूला आपका ये हो गया न्यूमेरिकल एपर्चर का, हम इसके तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसको हम n से डिवाइड कर दिए तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 माइनस n2 अपॉन n1, और आपको दिखाई दे रहा है n2 अपॉन n1 हमारा साइन थीटा सी की वैल्यू के इक्विवेलेंट है, ठीक है? तो यहां हम इसको कोरिलेट कर सकेंगे दोबारा फिर से किसी और चीज के लिए। यदि मैं इसी को कोरिलेट करूं यहां से na इज इक्वल टू n1, यहां से हम कॉमन निकाल दें तो n1 1 माइनस n2 अपॉन n1 होल स्क्वायर, ये आ गया वैल्यू। और यहां से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं n2 अपॉन n1 का,
तो यहां से आप n2/n1 निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो n2/n1 इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा, ये वैल्यू आ रही है आपकी। अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो न्यूमेरिकल अपर्चर का एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, n1 1 माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा। तो डेल्टा स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोर ऑफ क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, which is very much less. That's why here we can neglect the delta square, और ये आपको कैंसिल आउट हो रहा है, इधर n1 ऑलरेडी है, सो na की जो वैल्यू डायरेक्ट आ रही है आपकी n1 अंडर रूट 2 डेल्टा। तो ये एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया n1 का। तो n1 के दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला आपके लिए हो गया na इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला यही हम मेंशन करते हैं n1 अंडर रूट 2 डेल्टा। अब इन दोनों फॉर्मूले को कहां आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में? जहां पे आपको दोनों के कोर क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा वहां आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और इन जनरल यदि आपको कोर ऑफ क्लेडिंग दिया हुआ है तो आपको n1 n2 के माध्यम से भी आप न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है डेरिवेशन, ये आपके 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सबसे पहले यहां से आपको एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है, फिर आपको इस वैल्यू से अप्लाई करना है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ अप्लाई करने के बाद आपको ये बताना है कि what are the main primary condition to propagate the light within the fiber. So the condition are theta is equal to theta c, I is equal to I maxima, and sin theta is equal to n2/n1, and n1 should be greater than n2. So these condition will be applied in our the second equation, and now we got the new condition, sin I maxima is equal to n1/n0 cos theta c. So वन बाय वन आप सॉल्व करेंगे तो हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा एक्सेप्टेंस एंगल का, दैट इज आई मैक्सिमा इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1 स्क्वायर अपॉन n2। तो एग्जाम में यदि आपको एक्सेप्टेंस एंगल पूछा जा रहा है तो इस फार्मूले को यूज करना है, और न्यूमेरिकल फार्मूला आपको पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल अपर्चर, तो आपके सामने ये है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।